So the question that we had to solve is 7x minus 2y upon xy. ये अपना question है 7x minus 2y upon xy. This is given to be equal to pi. Okay, तो इसका वैल्यू जो दिया है this is equal to pi बताया. And the second value, is it not visible over here? Just a second. So यहाँ पे जो इसका second equation था, that is 8x plus 7y. So 8x plus 7y upon xy. This is equal to 15. Okay, so ये value equal to हम लोग को क्या बताया? This is 15. So how are we going to solve this question? Obviously, okay, 7x minus 2y upon xy. So what we can write is, I can write it as 7x upon xy minus 2y upon xy. And this value will be, obviously this value will be equal to 5. Okay, so ये value equal to क्या हो गया? 5 हो गया. So 7x minus 2y upon xy. Okay, 7x upon xy minus 2y upon xy equal to 5. So ये अपना value था यहाँ पे. Okay. And the second equation that we can write is 8x upon xy plus 7y upon xy equal to, of course I can write it as 15. Okay. So ये हमारा जो है, this is the value that we are getting right now. Okay. So obviously I can cancel off this x term from here. Okay. So यहाँ पे से हम लोग ये x का terms को cancel कर सकते हैं. We can cancel off this x and x. Okay. I think this board is not so working properly. Just a second. Is there any other board that I can use over here? You can use this one because यहाँ पे इसका cursor दिख रहा है. But the other one, उसमें cursor दिख नहीं रहा. So I'm facing some problem because of that. So what is the question over here? So like I said, यहाँ पे question क्या है? It is 7x minus 2y upon xy. Okay. So 7x minus 2y upon xy. Equal to, we have a 5 and 8x plus 7y upon xy. This value is equal to 15. Okay. So this is what is given to us. अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? Obviously, like I said, we can, मतलब इससे पहले हम लोग जब कर रहे थे तो xy को separate कर सकते हैं. So each term will have a separate xy over. So यहाँ पे हो जाएगा, this is 7x upon xy minus 2y upon xy and this is equal to 5. Okay, तो ये वाली equal to क्या हो जाएगा? 5. And same way, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8x upon xy plus this will be 7y upon xy and this will be equal to 15. Is there any doubt in this much part? कोई समझ में आ रहा है? Okay. So there was some, what can I say? There is some glitch over here. It is not working so perfectly, but ठीक है. So इसमें क्या हो जाएगा? Obviously I can cancel off this x and x. यहाँ पे से y और y cancel हो जाएगा. इसमें भी x and x cancel हो जाएगा. यहाँ पे से y and y cancel हो जाएगा. So what are we getting over here? Okay. It is 7 upon y minus 2 upon x
equal to 5. And the second equation that we will get is 8 upon y plus 7 upon x is equal to 15. Okay. I think the laptop is not on the charger, right? Just a second. I'll just switch on the charger for this. Yeah. Okay. So अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? This is 7 upon x minus 2, 7 upon y minus 2 upon x and 8 upon x plus 7 8 upon y plus 7 upon x equal to क्या आ रहा है? 15. So in this, how do we solve this? We will say let 1 upon y. Generally हम लोग 1 upon y का वैल्यू को n से रिलेट करते थे and 1 upon x का वैल्यू को हम लोग किससे रिलेट करते थे? by n. Okay. तो अभी जो भी टर्म्स में अपॉन x है उसको m लिखने वाले हैं और जिसमें भी अपॉन y है उसको n लिखने वाले हैं. So we will get 7n minus 2m equal to 5 and 8n plus 7m equal to 15. Is there any doubt in this much part? ये clear है सबको? Yes, sir, clear. Any problem in this? No. Yes, students. आपको clear है ये? Are you all there? Yes, sir, clear. Okay. ये calculations hopefully आपको clear है. इसका स्पीकर का आवाज थोड़ा कम है वैसे. Okay. I think अभी आप कुछ बोलोगे तो आवाज आना चाहिए मुझे. So ये 7n minus 2m equal to 5, 8n plus 7m equal to 15. So obviously I will take this as my equation number 1 and this is my equation number 2. So आपको क्या करना चाहिए? अभी equation 1, equation 2 को simultaneously solve करो. We will get the values of m and n and जो भी required calculations वो आराम से हो जाना. Correct? So what can I say over here? कोई एक वैल्यू को इक्वल करने ट्राई करते हैं. तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है. Okay. So multiplying equation 1. Okay. So multiplying equation 1 by 8 and equation 2 by 7. ठीक है. तो ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं. तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया है हमने? 8 से और सेकंड को हमको मल्टीप्लाई करना है बाय 7. So what is the value that we will get? So 8 into 7 हो जाएगा 56. 8 2s that will be 16. 8 5s that will be 40. Same यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई किया. 7 8s are 56. 7 7s are 49. And 7 into 15. So 15 into 7 will be equal to 75. Okay. So these are the values that we are getting right now. Okay. Of course, we will have to subtract these values. Correct? तो हमको ये values को क्या करना पड़ेगा? We'll have to subtract these values. So let us subtract. So equation ये था suppose 3, and this is the equation 4. So I'm subtracting 3 from 4. So यहाँ पे हम लोग 4 को पहले लिखेंगे. And this is 56n minus 16n equal to 40. So we are subtracting this. Obviously यहाँ पे क्या हो जाएगा? Sign change हो जाएगा.
Okay. So So 56 minus 56 will cancel. 49 plus 16 हो जाएगा. What is 49 plus 16? Obviously, that will be equal to 65. 75 minus 40. So that will be 35. Okay. So ये value कितना हो जाएगा? That will be 35. So we are getting this value is 35 upon 65. So 5 sevens are, 5 13s are. So the value of n that we are getting is 7 upon 13. इसमें कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? No, sir. So ये हम लोग ने n का वैल्यू फाइंड किया. अभी n का वैल्यू फाइंड करेंगे and we can get the values of x and y. Is there any doubt in this? Are you able to understand? Yes, sir. Okay है? Yes, sir. ठीक है. So let us continue now. Is there an echo? किसी को कुछ echo हो रहा है क्या? Yes, sir. How come यहाँ पे इसका माइक का आवाज नहीं आ रहा है? आपको echo आ रहा है? Yeah, I think there is an echo. Hello. Am I audible for everyone? Yes, sir. Okay. Is there any audio issues? Echo या ऐसा कुछ? Okay. आगे कंटिन्यू करते. So n का वैल्यू जो है, we have 7 upon 13. So we will substitute this into any one of the equations. Okay, either 1 or 2. 1, 2 में substitute करना better रहेगा. So substituting n equal to 7 upon 13 in equation 1. तो ये हो जाएगा 7n, that is 7 upon 13 minus 2n equal to 5. So ये minus इस तरफ आ जाएगा, ये plus इस तरफ आ जाएगा. Correct? So I will get 2n. This is 49 upon 13 minus 5. So 13 into 5 कितना हो जाएगा? 65. Correct? So this is 49 minus 65 upon 13. Correct? So this value comes out to be equal to 49 minus 65. Obviously वो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, that was 16. So minus 16 upon क्या हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा. Okay. So the value that we are getting is minus 16 upon 13. And of course this is equal to 2n. So 2 and 2 will cancel. And we will get minus 8 upon 13. This is the value of n. Of course, we had to find x and y. So we will have to now substitute. Okay, so let us resubstitute. M is equal to 1 by x and n is equal to 1 by y. So resubstitute करते हैं. So m के जगह पे I will write minus 8 by 13. And यहाँ पे n के जगह पे what is the value of n that we had found? 7 upon 13. Okay. So 7 upon 13, this is 1 upon y. So the value of x comes out to be minus 13 upon 8 and y is plus 13 upon 7. So ये हमारा x और y का values है which we had to find. Is this question clearly understood by everyone? ये सब हमने पहले किया हुआ calculations ही है, but just so that you don't face any problems, इसके लिए मैं कर रहा हूँ. Are you able to understand this? सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? अभी हम लोग को जस्ट वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ा करना है. Okay. So almost all the simple questions is
like done. We just have to discuss a little more word problems so that we can finish off the chapter. तो अपना chapter जो है almost finish हो गया है, थोड़ा सा ही बस थोड़ा काम बाकी है. Let us do that also and finish off the chapter. So you can see what is written over here in this question number 7. Okay, 7th question. Okay. So this is like what can I say? This is more like solved example के जैसे ही है. उसमें हम लोग को थोड़ा filling the blank करके उसको solve करना. Okay. So यही पे मैं fill कर देता हूँ. So you can see a 2-digit number and the number with the digits interchanged add up to 143. तो एक 2-digit का नंबर है और उसका उल्टा जब डिजिट्स को इंटरचेंज किया, जैसे 23 है उसको उल्टा करो तो 32 हो जाएगा वैसे. ओके, तो उन दोनों को प्लस करो तो कितना होगा? 143. So in the given number, the digit in the units place is 3 more than the digit in the tens place. Find the original number. Okay, तो जो अपना units place का जो digit है और आपका जो tens place का digit है, they are 3 values apart. ठीक है, मतलब दोनों में कितना का डिफरेंस है? सिर्फ 3 का. So finally हम लोग को बोला है what is the number that we had to find. Okay. So ये जो यहाँ पे उन्होंने लिखा है यही सब कुछ, बट ये नहीं. ठीक है. सो 20 का नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि there is a word problem that is given to us. 7th question. Okay. So a 2-digit number and the number with the digits interchanged add up to 143. Okay. So we can say it like this. Let the number at the digit at the units place be x and the digit at the tens place be y. Okay, तो सोच के देखो, digit at the units place is x and the digit at the tens place is y. So what is the original number? So therefore the number is, कोई बता सकता है इसका नंबर क्या होगा? टेंस प्लेस पे y है और यूनिट्स प्लेस पे x है. What is the number that we can write? XY. Any guesses, anyone? अगर y पे y का जो वैल्यू है दैट इज एट द टेंस प्लेस, x का जो वैल्यू है दैट इज एट द यूनिट्स प्लेस, तो वो नंबर क्या होगा? कोई गेस कर सकता है? इसको मुझे क्या लिखना चाहिए? xy. ऋषिका इज सेइंग दैट वी शुड राइट इट जस्ट xy. नहीं, ऑब्वियसली ऐसे नहीं होगा ना. सोच के देखो, अगर मैंने बोला कि द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज से 5 and the digit at the units place is 8, तो क्या आपको इसको ऐसे 5 8 करके लिख देना चाहिए तभी ये 58 होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं. 58 कब होता है? वो 58 होने का रीजन क्या है? बिकॉज 5 is at the tens place and 8 is at the units place. तो tens place में जो है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और units place में जो है वो यूनिट से मल्टीप्लाई होगा. Correct? So this is how I can write the number to be equal to 58. लॉजिक क्लियर है? तो सेम तरीके से यहां से मुझे क्या लिखना चाहिए? I should write it as 10 into y plus x into 1, or I can just say 10 into y plus x. So this is the required number that we have, 10y plus 5x. No, sorry, 10y plus x. ये क्लियर है सबको? 10y plus x क्यों लिखा है? टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई होगा, यूनिट्स प्लेस में जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा. सो 10y plus x वो अपना अभी का जो ओरिजिनल नंबर है वो ये है. अभी इसको इंटरचेंज करते हैं. ठीक है. सो व्हेन द डिजिट्स
are interchanged. So obviously when the digits are interchanged, मतलब जो x पे था वो y पे आएगा और y पे जो था वो x पे आएगा, ऐसे इमेजिन करके देखिए। तो अभी यहाँ पे अपना इंटरचेंज्ड नंबर क्या होगा? ओके, सो इंटरचेंज्ड नंबर is equal to 10 into x plus y. इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस विल बी 10 into x plus y, ऐसा हो जाएगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है? सो अपना ओरिजिनल नंबर जो था दैट इज 10y plus x, इंटरचेंज्ड नंबर जो है दैट इज 10x plus y. नाउ इन द सम इट इज सेड दैट sum of these two numbers, ठीक है, सो आप by the first condition, what is given in the first condition? जब हम लोग ओरिजिनल नंबर और इंटरचेंज नंबर को ऐड करेंगे तो 143 आएगा, ठीक है। सो बाय द फर्स्ट कंडीशन 10y plus x plus 10x plus y, this value comes out to be equal to 143. So this is what is given to us, okay. 10y plus y obviously 11y हो जाएगा, ये भी 11x हो जाएगा. So 11x plus 11y is equal to 143. 11 से डिवाइड कर दो इसको, so x plus y equal to कितना आ जाएगा? This is 13. So this is your first equation, x plus y equal to 13. First equation is clear for everyone? किसी को भी first equation में कोई भी डाउट है? Everyone is clear with the first equation? No doubt, right? So x plus y equal to 13, ये अपना first equation था. अब second condition में क्या बोला है? So by the second condition, okay. What is given in the second condition? The digit at the units place is 3 more than the digit at the tens place. मतलब इसमें कौन बड़ा है? Obviously digit at the units place is more, digit at the tens place is less. तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताया है कि अगर मैंने x माइनस y किया, यूनिट्स प्लेस के नंबर ने टेंस प्लेस के नंबर को माइनस किया, तो मुझे क्या बचेगा? 3. ये कंडीशन क्लियर है? नहीं तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज का मतलब इक्वल टू. इक्वल टू के पहले क्या लिखा है? द डिजिट एट द यूनिट्स प्लेस इज व्हाट? मोर देन मतलब प्लस, मोर देन द डिजिट एट द टेंस प्लेस बाय 3. तो डिजिट एट द टेंस प्लेस से वो कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है. ओके, सो यहाँ पे फाइनली हम लोग को यही मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो दिस इज व्हाट वी विल गेट एज द सेकेंड इक्वेशन. अब सोच के देखो, कैन यू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ x एंड y? कर सकते हो आप ये? You have to solve the equation, solve the two equations and get the values of x and y. Okay, so start everyone quickly. आप अभी start करो इसको और दोनों equations को simultaneously solve करो. Obviously you will add both the equations. आपको x मिलेगा और फिर आपको क्या मिलेगा? y. So tell me what is the value of x that you are getting and tell me what is the value of y that you are getting. So if you are adding equation 1 and 2, you will get first the value of x and then the value of y. If you are subtracting, तो correct. ऋषिका ने इसका आंसर बताया है. So x is equal to 8. So she is correct. So आप भी solve करो. x is equal to हम लोग को क्या आ रहा है? This is 8. तो x का value 8, आप इसमें substitute करना, so you'll get the value of y. The corresponding value of y that you're going to get is 5. So x is equal to 8 and y is equal to 5. ऐसा हो जाएगा. सबको ये क्लियर है? ऋषिका has got the answers. She just gave the answers. B group में she has put it. So x is equal to 8 and y is equal to 5. But अपना question actually x और y find करना नहीं था. The question was to find the number. ठीक है? So आप हम लोग बोल सकते हैं therefore the number is
ओके तो जो टेंस प्लेस में है मतलब y, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो यूनिट्स प्लेस में है उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे. So the answer that you are going to get is 58. Okay. So the answer that we will get is 58. That is the original number that we wanted. Is this part clear for everyone? सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है कैसे था? पहले हमने x और y को assume किया यूनिट्स एंड टेंस प्लेस के नंबर्स को. Then we wrote what is that number by using 10 into x or 10 into y plus x. फिर इंटरचेंज नंबर कैसे दिखेगा? फिर हमने उसको ऐड करना है, उसका वैल्यू 143 आ रहा था. उससे हमको क्या मिलेगा, व्हाट इज द वैल्यू, उससे मतलब एक इक्वेशन बनेगा x plus y equal to 30. अब सेकेंड कंडीशन यूज करो. So from the second condition we got x minus y equal to 3, and then we solved it, we got x and y and we got the original number. Is there any questions that you have to ask in this? सबको ये क्लियर है x का वैल्यू और y का वैल्यू कैसे आया है? Hopefully आप भी इसको सॉल्व करो, because only few students are, I mean like बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन लेक्चर्स में ऐसे ही बस मीटिंग में अटेंड करने के लिए रख देते हैं और फिर चले जाते हैं. डोंट डू दैट. ओके हो सकता है कि अभी सिचुएशंस थोड़ा सा इम्प्रूव हो. स्कूल्स कॉलेजेस भले ही वो थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, बट आपका एग्जाम प्रॉपरली कंडक्ट हो जाए. सो डोंट बी टू कॉम्प्लेसेंट. ओके आप एकदम ऐसे मत सोचो कि हाँ भाई आपको कुछ कभी करना ही नहीं पड़ेगा. नहीं, हो सकता है कि इस साल एग्जाम्स हो. सो बी वेरी अटेंटिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. ओके सो यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे आंसर हमको 58 आ रहा है. दैट इज करेक्ट. अब यहाँ पे देखो, अभी ये भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है. सो यहाँ पे क्या बोला है, कांताबाई बॉट 1.5 kg टी, 3 kg sugar from a shop. Sorry, 5 kg sugar from a shop. She paid ₹50 as a return fare for the rickshaw. Total expense was 700. Then she realized that by ordering online, the goods can be bought with free home delivery at the same price. So next month, she placed an order for 2 kg tea and 7 kg sugar, and she paid ₹880 for that. Find the rate of sugar and tea per kg. Correct? So you can see, अभी यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि दिस थियरी ऑफ solving simultaneous equations can be used for our day-to-day life as well. अब ये तो सिर्फ दो ही एग्जाम्पल्स को रखा है, बट ये हम लोग देख सकते हैं मतलब टी और शुगर को छोड़ के अगर हम लोग ने 10 प्रोडक्ट्स खरीदा होता, एंड वी कैन सी इफ बाइंग समथिंग ऑनलाइन इज मोर अफोर्डेबल या मोर चीपर, ओके ऑब्वियसली वी विल ऑप्ट फॉर दैट. ओके सो दैट इज द यूज ऑफ सच टॉपिक्स इन आवर डे टू डे लाइफ एज वेल. तो ऐसा नहीं कि ये हम लोग यूज करते ही नहीं. ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो समथिंग दैट वी कैन यूज इन आवर डे टू डे लाइफ, सो दैट द व्हाट कैन यू से, वी कैन यूज इट फॉर द, हम लोग सो ऐसे यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग को या तो उससे हमारा कुछ फायदा हो रहा है, जैसे ये केस में है. ओके ऑब्वियसली हम लोग जब आप सोचो अगर हम लोग डीमार्ट में जा रहे हैं, हम लोग ने शुगर खरीदा, सपोज इट कॉस्टेड अराउंड 200 रुपीज 5 kg शुगर, बट वहीं पे अगर आपको ऑनलाइन दिख रहा है कि दैट यू कैन बाय द सेम अमाउंट ऑफ शुगर फॉर 150 रुपीज, तो ऑब्वियसली हमारा मन क्या बोलेगा कि वी शुड बाय दैट ऑनलाइन. तो सेम तरीके से ये क्वेश्चन भी सेट किया है. But the only difference is that we don't know the price of sugar and tea. We have to find the price of sugar and tea per kg. Question clear है सबको? क्या करना है हमको? Per kg tea और sugar को find करना है. So obviously हमारा first statement क्या होगा? Let the price of, ये 7th का second है शायद से. So this is 7th question, second. So what is given to us? We have to find the price of sugar and tea. So let the price
of 1 kg sugar and 1 kg tea be rupees X and rupees Y रेस्पेक्टिव. ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कि भाई इसका जो प्राइस है वो ऐसा रहेगा X एंड Y करके रहेगा. ठीक है, so let the price of 1 kg sugar and 1 kg tea be rupees X and rupees Y respectively. अब आगे क्या, तो अपना फर्स्ट कंडीशन मिला. सो बाय द फर्स्ट कंडीशन सो बाय द फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या बोला था, शी हैड बॉट 1.5 kg, तो 1.5 kg के शुगर हमने X लिया हुआ है और Y हम लोग ने जो है T लिया हुआ है. ठीक है, सो 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर. सो यहाँ पे 5 kg शुगर, सो 5x प्लस 1.5y, इसका वैल्यू इक्वल टू, ओके, इसका वैल्यू इक्वल टू हम लोग को क्या दिया हुआ है, 5x प्लस 1.5y इक्वल टू, कोई बता सकता है इसका वैल्यू इक्वल टू मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? व्हाट इज द वैल्यू दैट आई हैव टू राइट ओवर है, मतलब राइट हैंड साइड में क्या लिखना चाहिए? कितना बताया है इसका जो प्राइस आया था? ओके, इसका प्राइस नहीं दिया, हम लोग को बोला है कि शी पेड ₹50 फॉर ऑटो रिक्शा एंड द टोटल एक्सपेंस केम आउट टू बी 700 रुपीज. तो टोटल 700 रुपीज खर्चा हुआ था उस दिन पे, बट 50 रुपया उसमें क्या था, दैट वॉज द रिक्शा फेयर. करेक्ट, सो द टोटल एक्सपेंस मतलब रिक्शा फेयर को भी इंक्लूड करके 700 रुपया हुआ. तो ऑब्वियसली इस तरफ मुझे क्या लिखना चाहिए, आई शुड राइट दिस इज 700 माइनस 50. ये पॉइंट क्लियर है सबको? 5x प्लस 1.5y इक्वल टू 700 माइनस 50. ऐसा क्यों लिख रहा है, माइनस 50 क्यों कर रहे हैं? Everyone is clear why we are writing minus 50? Because टोटल एक्सपेंस में से हमने रिक्शा का फेयर को माइनस कर दिया, सिर्फ शुगर और टी का जो प्रोडक्ट का प्राइस है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट. 5x प्लस 1.5y इज इक्वल टू 650. किसी को भी इसमें कोई डाउट है? सबको ये क्लियर है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? व्हाई वी आर राइटिंग 5x plus 1.5y equal to 650. Anyone who has any doubt in this? Okay, तो अभी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, so that 1.5 मेरे कैलकुलेशन में से निकल जाए. So I will get 10x plus 3y equal to 650 का डबल करोगे आप, so that is 1300. So this is what I will write as my equation number 1. It is 10x plus 3y equal to 1300. ठीक है, so ये अपना फर्स्ट कंडीशन. So now by the second condition. So देखो आप सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है? सेकेंड कंडीशन में बोला है कि नेक्स्ट मंथ में what did she do? She placed an online order for 2 kg so the next month she placed the order online for 2 kg of tea and 7 kg of sugar. ठीक है, तो ऑनलाइन अभी उसने कितना प्लेस करना है ऑर्डर? 2 kg टी एंड 7 kg शुगर, और उसके लिए उसका प्राइस कितना आ रहा है, दैट इज 880. सो 2 kg टी एंड 7 kg शुगर. सो 2 kg टी, अच्छा टी के लिए y आएगा, एंड 7 kg शुगर. Okay, so this is 7x plus 2y. And she paid how much? That was 880 rupees.
Okay, so this is our second equation. यहां तक सब कुछ क्लियर है? How we have formed the equations? ओके, अब बस इसको सॉल्व करना है, सिंपल. सो क्योंकि यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है, आई विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड दिस आई विल मल्टीप्लाई बाय 3. ठीक है, और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. सो आप भी स्टार्ट करो सॉल्व करने के लिए साइमल्टेनियसली. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3, इसको मल्टीप्लाई किया हमने and we will get 20x plus 6y equal to 2600 and यहाँ पे हो जाएगा 7 3s are 21x plus 6y equal to, okay, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें हम लोग, 3 0s are 0, 8 3s are 24, 4 कैरी 2 आएगा and 8 3s are 24 plus 2 26 हो जाएगा. So now can you see that these two equations can be solved very easily. आप just subtract कर दो, आपको पहले x मिलेगा and x के बाद में आपको क्या मिलेगा, y. So I think ये क्वेश्चन काफी लाइक प्रेजेंट टाइम के हिसाब से बराबर चल रहा है. शुगर के लिए 1 kg का प्राइस कितना आ रहा है, 40 रुपीज, which is almost like close to the price that is going on right now. मतलब शायद से जिन्होंने भी ये क्वेश्चन बनाया था उनको पता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं. So that is why they had kept it that price only, 40 rupees per kg for sugar. And same अभी आपको x का वैल्यू यहाँ पर डाल देना है तो y का वैल्यू बचा. So आप x और y का वैल्यू फाइंड करो इसमें. I think you should be able to get the answer very easily. Solve it quickly everyone. x और y का वैल्यू फाइंड करो. So I think yes, it is 40 rupees for sugar. और फिर आप किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना. So if I keep that as 40, 400 हो जाएगा. T का I think 300 rupees आएगा. So I think this is the answer that we are going to get. So x is equal to 40 and y is equal to 300. Okay, ऐसे कुछ आना चाहिए. सॉल्व करके देखो एवरीवन. ठीक है, चेक करके देखो कि आपका कैलकुलेशंस भी ऐसे ही आ रहा है या कुछ और आंसर आपको आ रहा है. Where you are getting the same answer, x is equal to 40 and y is equal to 300, ऐसे आंसर आ रहा है. और where you getting something different. आप ट्राई करो, आपको टाइम दिया जा रहा है सो दैट यू कैन सॉल्व इट ऑन योर लाइक आपका पेस पे ही आप सॉल्व करो चलेगा, बट you should be able to get the answers. So I think the answer is 40 and 300, which दर्शन को भी आया है और ऋषिका को भी आ गया. Hopefully the rest of the students are also solving the questions and getting the correct answers as well. Okay, अभी next question पे जाते हैं then. So यहाँ पे क्या लिखा है, to find the number of notes that Anushka had complete the following activity. Suppose that Anushka had X notes of ₹100 and Y notes of ₹50 each. Anushka के पास 2500 था, okay, from Anand, as denominations mentioned above. Therefore, उससे एक equation बनेगा. If Anand would have given her the amount by interchanging the number of notes, Anushka would have received 500 less than the previous amount. So that will lead us to equation number 2. So अपने को बोला है find the number of notes. Simple सा है. So हम लोग को कैसे बताया कि अनुष्का के पास कितना पैसा है. She has got 2500 rupees. उसमें से X नोट्स 100 डिनोमिनेशन के है और Y नोट्स जो है वो 50 डिनोमिनेशन के है.
ऑब्वियसली ये दोनों पैसे को आप जोड़ दो तो 2500 बनेगा, ठीक है। 100 के कितने तो नोट थे एंड 50 के भी कितने तो नोट थे, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 2500। अब हमको क्या बोला कि इफ वी इंटरचेंज, तो यहाँ पे नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स को अगर हमने y रखा एंड नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स को अगर हमने x रखा, तो अनुष्का के पास 500 रुपया कम आएगा। 500 रुपया कम हो जाएगा मतलब कितना हो जाएगा, 2000। तो मतलब 100 इंटू वाई प्लस 50 इंटू एक्स, ऐसा करने पे हमको कितना बनेगा यहाँ पे 2000। फिर ये दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फिर से एक बार देखो, सोच के देखो, अगर हमने ऐसे बोला कि से अनुष्का हैज 20 notes of 100 and she has say 10 notes of 50 suppose, ठीक है। तो अभी इसके पास कितना पैसा हो जा रहा है, कैन यू सी, दिस इज 2000 एंड दिस इज 500, दोनों मिला के हो गया 2500, बराबर है। अब इंटरचेंज करते हैं, तो अभी 10 नोट है 100 का तो 100 का 10 नोट और 50 का 20 नोट हो गया। नंबर ऑफ नोट्स आर इंटरचेंज्ड, तो 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000, और ये भी आप करके देखो तो 1000 आएगा। तो यही उसका करेक्ट आंसर, मैंने गलती से गेस कर लिया। तो मतलब कितना नोट्स है 100 का और कितना नोट्स है 50 का, सो 10 नोट है 50 का और 20 नोट है 100 का। तो यही एक्चुअली अपना करेक्ट आंसर भी है, बट ऑफ कोर्स ये तो जस्ट मैंने गेस कर लिया था गलती से। I was trying to give you an example, but यहाँ पे एक्चुअली आंसर ही गेस हो गया मेरे से। बट हमको कैसे लिखना चाहिए, लेट अस सॉल्व, ओके, लेट अस राइट इट एंड सॉल्व। कैसे हमको इसको लिखना चाहिए, सो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ नोट्स, ओके, लेट द नंबर ऑफ नोट्स of denomination 100 be x and the number of notes of denomination 50 be y, okay। तो 100 डिनोमिनेशन के नोट्स कितने हैं x और 50 डिनोमिनेशन के कितने हैं y। So therefore the total amount is, obviously ये हो जाएगा 100x plus 50y, given Anushka has given Anushka has 2500 रुपीस, तो इतना पैसा है उसके पास। तो ऑब्वियसली हम लोग को क्या करना चाहिए, 100x प्लस 50y इक्वल टू लिखना चाहिए दिस इज 2500। ऑफ कोर्स आई कैन डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 50, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू, तो ये 50 से डिवाइड किया, 55 ओके 25 हो जाता है, मतलब 250 हो जाता है। सो यहाँ पे ये 0, so this is what we will get as the first equation. So 2x plus y is equal to so 2x plus y equal to कितना हो जाएगा, this will be equal to 50। यहाँ तक का ये फर्स्ट कैलकुलेशन सबको क्लियर है। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया है, किसी को भी इसमें कोई डाउट है? 2x plus y is equal to 50 कैसे आ रहा है? Everyone is clear with this calculation? 2x plus y is equal to 50, okay। अभी हम लोग इंटरचेंज करते हैं, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 एंड 100 को
इंटरचेंज कर। सो यहाँ पे आफ्टर interchanging the denominations, after interchanging the number of notes, okay, so after interchanging the number of notes, तो हमने नंबर ऑफ नोट्स को इंटरचेंज किया। सो नाउ द टोटल अमाउंट इज, ओके, सो द टोटल अमाउंट इज कितना हो जाएगा, 100 y को मल्टीप्लाई होगा और 50 x को मल्टीप्लाई होगा। गिवन Anushka gets 500 rupees less, so Anushka gets rupees 500 less, कम हो जाता है उसका पैसा। तो मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए, therefore, ओके, जो सेकेंड अपना इक्वेशन ऐसा आएगा, 100 मल्टीप्लाई हुआ y को, 50 मल्टीप्लाई हुआ x को, एंड हमारा पैसा 500 रुपया कम है, तो दैट इज 2000। अभी इसको आप 50 से ही डिवाइड करना, सो 2y प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ऑफकोर्स नहीं, ये नहीं सेकेंड इक्वेशन है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके फिर बनाता हूँ। सो x प्लस 2y, ठीक है, 2y प्लस x नहीं, x प्लस 2y, इसको हम लोग लिखेंगे 40। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। इज द सेकेंड इक्वेशन क्लियर फॉर एवरीवन? किसी को भी इसमें कोई डाउट है सेकेंड इक्वेशन में? सो पहले हमने क्या देखा कि उसके पास कितना नोट्स था, 100 डिनोमिनेशन का x था, 50 डिनोमिनेशन का y था, और पैसा कितना था, 2500। तो 100 रुपए का नोट्स की वजह से इतना पैसा हुआ, 50 की वजह से 50 इंटू y, और दोनों को प्लस करके हमारा कितना पैसा हो रहा है, 2500। सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 50। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेम तरीके से हमने y को और x को इंटरचेंज करके सेकंड इक्वेशन लिखा। क्या यहां तक सबको क्लियर है? Is there anyone who is not able to understand this? सबको क्लियर चल रहा है सब? तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट सॉल्व द टू इक्वेशंस। तो यहाँ पे 2x है, तो मैं भी यहाँ पे 2x लाने के लिए ट्राई करता हूँ, करेक्ट। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2, तो ये हो गया 2x प्लस 4y इक्वल टू 80, थर्ड इक्वेशन। अब ये दोनों को माइनस करो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, या इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, जैसे भी आपको करना है। सो यहाँ पे अगर मैंने लिखा 3 माइनस 1 करके लिखा, सो 3 थर्ड इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 2x प्लस 4y इक्वल टू 80 एंड 2x प्लस y इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट करना है, सो ऑब्वियसली ऑल द साइंस विल चेंज एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। फिर इसके बाद में y द वैल्यू ऑफ x। सो इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, करेक्ट। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y इजीली। कर लोगे? इज इट पॉसिबल? सिर्फ दर्शन और ऋषिका ही बस सॉल्व करते रहते हैं या रिप्लाई भी करते हैं? व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. किसी को भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है that you want to discuss or ask anything, you can ask. So इसको आगे आप सॉल्व करो और x और y का वैल्यू फाइंड करो। अभी तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वैसे x का वैल्यू क्या आएगा और y का वैल्यू क्या आएगा, करेक्ट। सो द वैल्यू ऑफ y दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 10 एंड द वैल्यू ऑफ x दैट यू आर गोइंग टू गेट इज 20, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करना, आपको पहले y का वैल्यू मिलेगा और फिर x का वैल्यू मिलेगा। सो y इज 10 एंड x इज 20, दैट इज द फाइनल आंसर दैट वी शुड बी गेटिंग।
क्लियर है ये सबको? ओके So let us now start with the next question. I think ये भी question सबको आ गया है अभी, या at least to students को आ गया है. Rest of the students hopefully you will be solving it, okay, when you are getting the time and get the correct answer. तो ये सब आपको send हो जाएगा, but of course आप जब solve करोगे तो ही आपका पूरा doubts जो है clear होगा, आपका understanding तभी ही improve होगा when you are going to sit and solve the question. ठीक है? So अभी next question में देखो क्या लिखा है. Sum of the present ages of Manish and Savita is 31. Manish's age 3 years ago was 4 times the age of Savita. Find their present ages. तो 3 साल पहले मनीष का एज सविता का 4 टाइम्स था. ओके और हमको क्या बोला है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. ओके सो सबसे पहले तो हम लोग बोलेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता बी x एंड y. ठीक है तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो एक्चुअली ऐसा है, देखो आप, मनीष एंड सविता. सपोज हमने बोला कि उनका प्रेजेंट एज, ठीक है, सो व्हाट इज देयर प्रेजेंट एज? सपोज दिस इज x एंड y. सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन दैट वी हैव बीन गिवन इज दोनों का एडिशन 31 है. तो ये आपका पहला इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31. ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी विल बी गेटिंग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31. अभी 3 साल पहले का बात करते हैं. ओके सो 3 years अगो. ओके सोच के देखो, मनीष का एज आज के डेट पे x है, तो 3 साल पहले उसका एज ऑब्वियसली x माइनस 3 ही होगा. करेक्ट. एंड सविता का एज तभी था y माइनस 3. ये पॉइंट में किसी को डाउट है? मनीष का एज आज के डेट में कितना था? x. 3 साल पहले उसका एज कितना तभी रहेगा? x माइनस 3 रहेगा, 3 साल कम. सविता का भी सेम होगा, दैट विल बी y माइनस 3. अब यहाँ पे हमको एक सेकंड कंडीशन दिया है कि 3 साल पहले मनीष का एज क्या था? दैट वाज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता. ऐसा था. सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई माइनस 3. सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 12. सो x माइनस 4y विल बी इक्वल टू माइनस 9. सो ये अपना सेकेंड इक्वेशन आएगा. सो आप ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करोगे साइमल्टेनियसली एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y एंड x ऑल्सो. इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कैसे हम लोग ये सम को सॉल्व करने वाले हैं? थोड़ा बहुत एक इसका हिंट दिया हुआ है, अभी मतलब प्रॉपर्ली इसको लिखना बाकी है, बट राइट नाउ वी हैव जस्ट सीन हाउ वी विल बी सॉल्विंग इट. सो लेट अस नाउ सॉल्व इट इन दैट मैनर. सो आप हम लोग क्या बोलेंगे? लेट द प्रेजेंट एज of Manish and Savita be x and y respective. ठीक है तो प्रेजेंट एज x एंड y. अभी हमको पहला कंडीशन क्या दिया? सो देयरफॉर बाय द फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ देयर एजेस इज 31 बोला है. ठीक है तो सम ऑफ एजेस, तो दोनों का एज को प्लस किया, इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमको? 31. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 31. ठीक है तो x प्लस वाई मिल गया हमको. कितना आ रहा है उसका वैल्यू? 31 आ रहा है. अभी हम लोग क्या करेंगे? 3 साल पहले का बात करेंगे. ओके सो यहाँ पे 3 years अगो
3 साल पहले। 3 साल पहले मनीष का एज कितना था? ओके, सो मनीष एज इज इक्वल टू x-3 and Savita's age is y-3। सो एक का x-3 है, दूसरे का y-3 है, और कंडीशन हमको क्या बोला है कि मनीष का एज सविता से 4 ईयर मतलब 4 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, सो इट इज 4 टाइम्स मोर, करेक्ट? सो 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, so 3 years ago. So by the given condition, x-3 मनीष का एज 4 गुना ज्यादा है फ्रॉम द एज ऑफ सविता। So x-3 is equal to 4y minus 12। फिर ये 4y और ये सिर्फ मतलब वैल्यूज को इंटरचेंज करना। So you'll get x minus 4y is equal to minus 12 plus 3. So that is minus 9. So this is your second equation. अभी आप इसको just minus करना, आपको y का वैल्यू पहले मिलेगा क्योंकि x और x सब्ट्रैक्ट हो रहा है, करेक्ट? तो आप ये दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन सब्ट्रैक्ट 1 minus 2 करके। ठीक है, तो पहला इक्वेशन दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेगा, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ y दैट यू आर गेटिंग, प्रेजेंट एज। ओके, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ Savita? You will be getting is 8, and what is the age of Manish? That will be 31 minus 8. So 31 minus 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। So that is the age that you will be getting. So 23 and 8, ऐसा हमारा आंसर है। So solve this further and find the values of x and y, everyone. So we are almost through with the chapter. बस हो गया है almost. So everyone try to solve this question, x और y का value find करो finally, so that the final answer is complete. Present age of Manisha and Savita should be 23 and 8. ऐसा आना चाहिए। वैल्यू आपको 8 आना चाहिए और x का वैल्यू आपको 23 आना चाहिए। Are you getting this answer? Yes, sir. Okay. So these questions are quite easy. बस आपको थोड़ा सा इक्वेशन वगैरह फॉर्म करने का जो लॉजिक है वो समझना है। These are not that difficult questions. आप देख सकते हैं हम लोग ने फ्रैक्शन वगैरह जो सॉल्व किया था वो क्वेश्चंस कितने लेंथी होते थे, ये तो उससे काफी इजी है। बट द ओनली आइडिया इज दैट यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या बोला, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ the skilled and unskilled workers is 5:3. Total salary of both of them is 720. Find the daily wages of the skilled and the unskilled workers. Okay, तो आपका जो skilled worker होगा और unskilled worker होगा, okay, so in a factory what is given that the ratio of the skilled and the unskilled workers is 5:3. Total salary of 1 day, so total salary for 1 day of both of them, तो दोनों का जो सैलरी मिला के है, that is given to us as 720. Find the daily wages of the skilled and the unskilled workers. Okay, तो इसमें we need not find the, what can I say, x and y यहाँ पे actually फॉर्म ही नहीं हो रहा, करेक्ट? ये सम एक्चुअली काफी इजी है। इफ यू जस्ट चेक, सम में क्या बोला है कि रेशियो है 5:3। ओके, सैलरीज का रेशियो 5:3 है और दोनों का सैलरी मिलाएंगे तो 720 होगा। सो देखो यहाँ पे जब आपको बोला है रेशियो है 5:3, I will say let the common multiple be
x, तो ये क्या हो जाएगा 5x और दूसरा वाला हो जाएगा 3x, इसको मिला के आपको बताया कि 720 आ रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पे 8x इक्वल हो जाएगा 720, x का वैल्यू हो जाएगा 90. So what is the ratio that we are getting? 5 into 90, that is 450. 3 into 90, that is 270. तो ये एक्चुअली इसका आंसर है 450 एंड 270. ये एक्चुअली दो वेरिएबल का था ही नहीं, दिस वाज सिंगल वेरिएबल. ओके, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हुआ x, बिकॉज वी आर टेकिंग द कॉमन मल्टीपल टू बी इक्वल टू x. तो दिस वाजंट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल. ये आप फिर से बाद में कंप्लीट करना. ओके, मैंने जस्ट डिस्कस कर दिया है, बट आप लोग इसको होमवर्क में सॉल्व करना. लास्ट क्वेश्चन. So let us solve this. So places A and B are 30 kilometers apart and they are on a straight road. Hamid travels from a bike from A to B on a bike. ठीक है, तो he travels 30 kilometers on a bike. At the same time, Joseph starts from B on a bike and travels towards A. They meet each other after 20 minutes. If Joseph would have started from B at the same time but in the opposite direction instead of towards A, Hamid would have caught him after 3 hours. Find the speed of Hamid and Joseph. ठीक है, तो once again इसमें क्या बोला है, स्पीड का सम है. ठीक है, सो आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताया है. A and B are 30 kilometers apart. तो टोटल डिस्टेंस मतलब बीच में जो है दैट इज 30 किलोमीटर्स. हमीद ट्रेवल्स फ्रॉम बाइक फ्रॉम ए टू बी एट द सेम टाइम जोसेफ फ्रॉम बी टू ए. दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स. तो 20 मिनट, टाइम कितना था 20 मिनट्स, तब दोनों एक पॉइंट पे आके मीट हुए. और अगर जोसेफ दूसरी तरफ गया होता तो 3 घंटे के बाद में ए जोसेफ तक पहुंचता था. ऑफ कोर्स मतलब ए का स्पीड बी से ज्यादा है. हम लोग को ये बताया है कि मतलब हम लोग को ये फाइंड करना है व्हाट इज द स्पीड एट विच जोसेफ एंड हमीद इज राइडिंग. सो यहाँ पे देखो हमीद जोसेफ. ऑब्वियसली मैं क्या बोलूंगा कि लेट द स्पीड विथ विच हमीद इज ट्रैवलिंग बी एक्स and the speed with which Joseph is traveling, let that be y. ठीक है, तो हम लोग के पास ऐसा फॉर्मूला था, distance is equal to speed into time, or I can say time is equal to distance upon speed. okay, so time पे based अगर हम लोग को क्वेश्चन करना है तो ऑब्वियसली हम लोग को टाइम डिस्टेंस स्पीड का ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करना पड़ेगा. सो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, स्पीड अभी हम लोग ने क्या एज्यूम किया है y एंड x. तो यहाँ पे स्पीड का वैल्यू एक x है और दूसरा y. अभी यहाँ पे हम लोग ये सोचते हैं. सो A से लेके B तक इट वॉज 30 किलोमीटर्स अपार्ट. तो एक बार हमीद ने ट्रैवल किया ए से लेके बी तक, उसी टाइम पे जोसेफ ने स्टार्ट किया बी से लेके ए तक, एंड दे मेट एट द सेम पॉइंट आफ्टर हाउ मेनी टाइम, मतलब 20 मिनट्स के बाद में सपोज हम लोग वो दोनों एक ही पॉइंट पे आके मीट कर. अच्छा यहाँ पे ये शायद ऐसे नहीं, ये यहाँ पे गई. ठीक है, थोड़ा सा मैं ए ने ज्यादा कवर किया ऐसे बता रहा हूँ बिकॉज ए का स्पीड थोड़ा ज्यादा है एक्चुअली. तो ये पॉइंट पे आके दोनों मीट किए. सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. सो अभी टाइम कितना हो जाएगा या डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आई कैन राइट डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ, दैट विल बी 20 मिनट्स. 20 मिनट्स मतलब 1/3 ऑफ एन आवर इनटू x. ओके, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 ऑफ कोर्स, दिस इज 30. ठीक है, तो इधर का डिस्टेंस प्लस इधर का डिस्टेंस को मिलाओ तो गारंटी है कि आपको क्या मिलेगा,
दैट विल बी 30। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये कैसे आ रहा है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। 1/3 कैसे आ रहा है? देखो आप 20 मिनट्स का बात किया है, तो 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट्स। तो 20 मिनट्स is how much of an hour? Obviously that will be cross multiplied, so that is 20/60, कट होने पे 1/3 आएगा। तो इसके लिए हम लोग ने 20 मिनट्स के लिए 1/3 लिखा है। और डिस्टेंस क्या होता है? दिस इज टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम का वैल्यू था 1/3, स्पीड का वैल्यू था हमारा x। यहाँ पे टाइम का वैल्यू था 1/3, स्पीड का वैल्यू था y। देखो आप ये इधर से इधर तक आया और ये इधर से इधर तक आया। देख रहा है ना टोटल कितना ट्रैवल किया? दोनों ने 30 किलोमीटर ही ट्रैवल किया रहेगा, बिकॉज दे आर बोथ मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट। तो टोटल कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? दोनों ने ट्रैवल किया है, दैट इज 30 किलोमीटर्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? किसी को भी इसमें डाउट है? ठीक है, अब सेकेंड वाला कंडीशन देखते हैं। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सपोज यहां से जोसेफ दूसरे तरफ जा रहा है और हमीद भी इसी तरफ आ रहा है, बट ऑफ कोर्स हमीद इज ट्रैवलिंग अ लिटिल फास्टर, एंड दोनों यहां पे आके एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं। तो आप इन दोनों के डिस्टेंस के बारे में क्या बता सकते हो? अभी हमीद ने कितना ट्रैवल किया होगा? 3 आवर्स ट्रैवल किया है। जोसेफ ने भी 3 आवर्स ही ट्रैवल किया है। तो हमीद ने ट्रैवल किया 3 आवर्स, ठीक है। सो दैट इज 3 into x. So this is the distance traveled by Hamid. And जोसेफ ने कितना ट्रैवल किया है? 3y ट्रैवल किया होगा। 3 घंटा जोसेफ ने ट्रैवल किया है, बट इन दिस डायरेक्शन, तो 3y। ओके, सो 3x 3y। अब सोच के देखो, अगर मैंने दोनों को माइनस किया, हमीद ने कितना ट्रैवल किया था डिस्टेंस? वो ये था, यहां से लेके यहां तक। जोसेफ ने कितना ट्रैवल किया था? यहां से लेके यहां तक। तो सोच के देखो, अगर मैंने दोनों का डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मुझे कितना बचना चाहिए आंसर? कोई गेस कर सकता है? ऑब्वियसली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज लेफ्ट एज द आंसर, करेक्ट। तो मैंने ये इतना पार्ट माइनस कर दिया, 3x minus 3y। ऑब्वियसली इसका आंसर इक्वल टू क्या आएगा? 30 आएगा। ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे एंड वी शुड गेट द आंसर दैट वी वांट। इज दिस क्लियर? आप चाहते हैं आप पे 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 3x plus 3y इक्वल टू 90 लिखना, 270 लिखना। सो 3x plus 3y इक्वल टू 270। फिर दोनों का आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आपको x और y आराम से मिल जाएगा। बट इज दिस क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन पार्ट अंडरस्टूड बाय एवरीवन? इसमें लिखना बाकी है, बट वो शायद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। बट एटलीस्ट आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर है कि हम लोग ने क्या किया है। We are using the formula distance is speed into time. Okay, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ही हम लोग ने यूज किया है, स्पीड इनटू टाइम। उसको क्रॉस मतलब आगे सॉल्व किया है, सो दैट वी कैन गेट 2 इक्वेशंस व्हिच कैन बी यूज्ड। क्लियर है ये सबको? सो हम लोग एक्चुअली यहाँ तक ही कर रहे हैं आज के लिए। एक सम रह गया, बट दैट वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। यही एक सम रह गया, थोड़ा एक बार फिर से एक्सप्लेन करके हम लोग इसी को करेंगे। एंड वी विल ऑल्सो स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, मतलब क्वाड्रेटिक के बाद वाला। तो ऑलरेडी क्वाड्रेटिक हैज बीन स्टार्टेड, तो उसके बाद जो है हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वट एवर इज दैर, क्वाड्रेटिक के बाद वाला जो भी चैप्टर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? सबको एक्सप्लेनेशन सब क्लियर था? किसी को इसमें डाउट है? ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड एवरीवन। आज के लिए हम लोग इतना ही कर रहे हैं। सो आई एम नॉट कंटिन्यूइंग फर्दर, यहाँ तक ही हम लोग इसको कंप्लीट करें, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड एवरीवन, ठीक है। सो द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद this one question, finish it and go to the next chapter.